Hello friends, thank you so much to all the students. Recently the channel, the name is Devang Sir Chemistry, has achieved 1.5k on YouTube. So for the same, thank you so much once again to all the students for watching, for sharing and subscribing the channel Devang Sir Chemistry. Be continue in the same manner. Okay, that's all. Now today what we are going to see, that is standard 12th English medium, the chapter number 3, electrochemistry, in which video number 7 we are going to see about the conductance of electrolytic solution. Video number 7. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट वीडियो में बच्चों क्या देखा था वो देखेंगे. सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड Gibbs energy of reaction, and regarding that sums we have done it. Okay, now in today's video what we are going to see, that is conductance of electrolytic solution. We are going to see the conductance of electrolytic solution. So let's start it. First of all, it is necessary to define a few terminology before we consider the subject of conductance in the electricity. यानी कुछ डेफिनेशन हमें पढ़नी पड़ेगी दोस्तों. टॉपिक को स्टार्ट करें उसके पहले, उसमें सबसे पहला हमारे पास है रेजिस्टेंस. ओके, सबसे पहला टर्म है, टर्मिनोलॉजी है हमारे पास द रेजिस्टेंस. Okay, and the symbol for resistance is capital R. Okay, the electrical resistance is represented by the symbol the capital R, and it is measured in ohm, and the symbol for ohm is just like that, which in terms of the SI base of the units is equal to, that is kilogram into meter square upon Siemens square into ampere square. It can be measured with the help of Wheatstone bridge. Now this instrument you are already aware how it is, how it works. Okay, in physics in a detail maybe you have been studied this. Okay, तो रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सबसे पहले कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर करते हैं हम. ओके, नाउ इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. ये बात होगी रजिस्टर. ओके, नेक्स्ट जो टर्म है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उसके बारे में बात करने वाले. सो द रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of wire. So you can write it R proportional to the length of the wire, that is L, and inversely proportional to its area of cross section. So R
is inversely proportional to the area of cross section. So if you do the total sum of this both, then you will be getting R proportional to L upon A. Again R, if you remove the proportionality sign, you need to keep the rho L upon A. So you will be having the formula of resistance, okay, which is directly proportional to the length and inversely proportional to the cross section, area of cross section. Okay. Here the rho this is considered a rho which is called as a resistivity. उसको हम क्या बोलते हैं? Resistivity. Okay. It is also called as a, इसका दूसरा भी नाम है specific resistance. Okay. Now the SI unit of specific resistance or you can also call it as a resistivity. So ये जो है बच्चों, तो उसमें उसका SI यूनिट हम बात करने वाले अभी. So SI unit are ohm into meter. You can write in form of symbol is in this manner, ohm into meter. And quite often, generally, कभी कभी हम इसका जो यूनिट है, ठीक है, वो ओहम इंटू सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आप. कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस मैनर, ओहम इंटू सेंटीमीटर. ओके. भी जो IUPAC जो है उन्होंने रिकमेंडेशन किया है भाई, International Union of Pure and Applied Chemistry, that the use of term resistivity over specific resistance. जो specific resistance उसके एक नाम है हमारे पास specific resistance. इसके बदले हमें क्या लिखना है? रेजिस्टिविटी. तो वो तो ऑलरेडी हमने आगे बात किया है, दो नाम उसके, ठीक है. सो रेजिस्टिविटी हमें यूज करना है. ओके. तो बुक में आगे ज्यादातर रेजिस्टिविटी टर्म का इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है. फिर हम बात करें रेजिस्टिविटी जो है दोस्तों, तो वो मेजर करें हम फिजिकली. The resistivity of a substance is it resistance. वो क्या है? तो कि वो और कुछ नया नहीं बल्कि
वो क्या है उनका रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी सपोज कि हम बात करें कि हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग वायर है, 1 मीटर लॉन्ग वायर वी आर हैविंग। क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो है 1 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम लिख सकते हैं दैट 1 ओहम इंटू मीटर इज इक्वल टू 100 ओहम इंटू सेंटीमीटर। और इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं 1 ओहम इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 ओहम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, शायद सबको आता ही होगा क्योंकि ये ऑलरेडी आप फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, अभी हमारे पास है एक और टर्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बारे में। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगर हो हमारे पास, हम लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस का जो सिंबल है वो है कैपिटल G। तो चलिए बनाते हैं फॉर्मूला उसका भी। G इज इक्वल टू 1/R, डेफिनेशन के हिसाब से हो गया ये। अभी R की हम वैल्यू रखेंगे रो L/A। ठीक है, अभी हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है कि 1/रो लिख सकते हैं हम 1/रो इज इक्वल टू कापा। क्या लिखेंगे, कापा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कापा A/L, ये हो गया आपका G। ओके, फिर ऐसा यूनिट जो है इसका, द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस। रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, इसका जो सिंबल रहता है दोस्तों वो है S। ओके, विच इज इक्वल टू द ओहम इनवर्स। आप लिख सकते हो कि भाई सीमेंस इज इक्वल टू ओहम इनवर्स, या फिर उसको आप ऐसे मोह MHO वो भी लिख सकते हो। ठीक है, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी जो है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी।
या फिर उसको आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, और उसका जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड एज एन कापा। ओके, क्या है वो? कापा, कटप्पा नहीं है भाई, कापा है। ओके, अभी जो है IUPAC ने भी इसका रिकमेंडेशन किया हुआ है कि उसको कौन से नेम से हमें पुकारना है। कि कंडक्टिविटी ओवर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हमें क्या नाम देना है? कंडक्टिविटी। ओके, रिकमेंडेशन हैज बीन गिवन बाय IUPAC। ओके, तो इसलिए ज़्यादातर हमारी जो बुक है उसमें यही टर्म कंडक्टिविटी का इस्तेमाल किया होगा। ओके, द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी जो है वो हो जाएगा सीमेंस पर मीटर। ओके, पर ज़्यादातर जो कापा है वो एक्सप्रेस होता है सीमेंस पर सेंटीमीटर से। ओके, सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं हम। वन मीटर लॉन्ग वायर है, ठीक है। उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो नॉट हुई है 1 सीमेंस पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सीमेंस पर मीटर। ओके, अभी इसके लिए हमारे पास एक पूरा टेबल है, वो देखेंगे दोस्तों। ठीक है, कि कुछ टेबल के अंदर वैल्यू दी है कंडक्टिविटी के मटेरियल के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारे पास दोस्तों कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है सोडियम मेटल, ठीक है, फिर है कॉपर एंड देन सिल्वर। तो सोडियम जो है उसकी कंडक्टिविटी है हमारे पास सीमेंस पर मीटर, तो वो है आपके पास 2.1 इंटू 10⁻³ कॉपर जो है उसकी है दोस्तों 5.9 इंटू 10⁻³ ऐसे ही सिल्वर है दोस्तों, तो सिल्वर का है 6.2 इंटू 10⁻³ आगे जाएंगे हम। तो और कुछ एग्जाम्पल है कंडक्टर्स के, जिसमें हमारे पास गोल्ड, आयरन एंड ग्रेफाइट। तो उसमें भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास गोल्ड। तो गोल्ड का है 4.5 इंटू 10⁻⁵ सॉरी 10⁻³ है, रफ कर देते हैं। (10⁻³ ओके। देन आयरन है हमारे पास, तो आयरन का कंडक्टिविटी रहेगा 1.0 या फिर सिर्फ 1 लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10⁻³ ऐसे ही आगे है ग्रेफाइट विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, ओके, बट इवन दो इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ ये सभी जो है दोस्तों वो सीमेंस पर मीटर है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है
एक्वियस सॉल्यूशन। तो एक्वियस सॉल्यूशन में दोस्तों हमारे पास है सबसे पहले प्योर वाटर 3.5 × 10⁻⁵, 0.1 मोलर HCl 3.91, 0.01 molar KCl 0.14, then 0.1 molar NaCl 0.12, 0.1 molar HAC, that is 0.047, then 0.01 molar HAC, that is 0.016. okay, इसके बाद है हमारे पास इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स में हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक है ग्लास एंड दूसरा है टेफलॉन। ठीक है, ग्लास एज वेल एज द टेफलॉन। तो टेफलॉन जो है दोस्तों उसकी है कंडक्टिविटी 1 × 10⁻18। ये आपका PTF ही है, पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको दोस्तों पता होगा, चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर में हम पढ़ गए। वो पूरा चैप्टर चाहिए तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आई बटन होगा, वहां पे प्रेस करोगे तो आपको पूरा पॉलीमर मिल जाएगा। ठीक है, देन ग्लास जो है दोस्तों, तो ग्लास की कंडक्टिविटी है हमारे पास 1 × 10⁻16। ओके, इसमें भी सीमेंस पर मीटर ही है। ठीक है, कुछ और मटेरियल है हमारे पास कि जिसमें सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर में हमारे पास है सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो इनका भी कंडक्टिविटी हमारे पास है। सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड जो है उनका कंडक्टिविटी हम लिखेंगे 1 × 10⁻⁻7। देन जर्मेनियम का है 2.0 या फिर सिर्फ 2 लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन अबाउट सिलिकॉन, दैट इज 1.5 आधा डेढ़ सॉरी × 10⁻²। ये सभी जो है वो सीमेंस पर मीटर ही रहने वाले हैं। ठीक है, अभी बोल सकते हैं कि भाई इट कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल, जो आगे हमें ये सब देखा। ठीक है, एग्जाम्पल दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी वेराइज इन द ग्रेट डील एंड डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसा MCQ दोस्तों पूछते हैं। ठीक है, GNET में। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन 1 नंबर, दैट इज द नेचर ऑफ मटेरियल, देन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। ये तीनों के ऊपर वो डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके हिसाब से जो मटेरियल से हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है हमारे पास, ठीक है, दैट इज कंडक्टर्स। ठीक है, और एक एग्जांपल है हमारे पास जिसमें है इंसुलेटर्स। And the next example that is considered to be the semiconductors. Okay, conductors, insulators and semiconductors. तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले है हमारे पास कंडक्टर्स। तो मेटल्स कंडक्टर्स क्या है भाई? metals and their alloys have very large conductivity. इनके पास क्या है? large conductivity. Okay, and are known as a conductor. इनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। जनरली इसके एग्जाम्पल मेटल्स एंड एलॉयज रहते हैं। ठीक है, सर्टेन नॉन मेटल्स like
कुछ नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि कार्बन ब्लैक, देन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में तो हमने आगे बात किया। एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग। ये सब कैसे एग्जाम्पल है? दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ द कंडक्टर्स। ओके, सब्सटेंसेस लाइक ग्लास एंड सिरामिक्स हैविंग द वेरी लो कंडक्टिविटी, इनको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर में हम क्या लिख सकते हैं? Substances which are having low conductivity. Okay? और उसके एग्जाम्पल में हमारे पास है ग्लास एंड सिरामिक्स। ओके, which are having the very low conductivity, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। ओके, फिर हम बात करें कि भाई कुछ ऐसे भी है सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन, ठीक है, उसके हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स का क्या है कि जिनका कंडक्टिविटी जो है उसके बारे में हम बात करें। सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन एंड डोप्ड सिलिकॉन, डॉपिंग किया हुआ, एंड गैलियम आर्सेनाइड, हैविंग द कंडक्टिविटी बिटवीन, इनका कंडक्टिविटी कैसा है? तो क्या इट इज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। सपोज कि कंडक्टर्स का कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा, ठीक है, और इंसुलेटर्स का कंडक्टिविटी बहुत कम रहेगा, तो बीच में कौन आ जाएगा? सेमी मेटल्स। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स। एंड दे आर दी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। कहां पे इंपॉर्टेंट है? इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। ओके, सर्टेन मटेरियल्स आर कॉल्ड एज एन सुपरकंडक्टर्स। कुछ मटेरियल जो है उनको हम क्या बोलते हैं? सुपरकंडक्टर्स। ओके, तो ये सुपरकंडक्टर क्या है? बाय डेफिनेशन हैव जीरो रेजिस्टिविटी। क्या है इसका? जीरो रेजिस्टिविटी। और आप ऐसा भी बोल सकते हो इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, दोनों में से कोई एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो
Earlier only metals and their alloys at very low temperatures जैसे कि 0 to 15 Kelvin were known to behave as a superconductor. पर आजकल जो है, ठीक है, अभी क्या है कि सिरामिक मटेरियल्स विच आर मिक्स्ड ऑक्साइड्स, सिरामिक्स प्लस ऑक्साइड, ठीक है, तो वो सुपर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं इवन एट द हाई टेम्परेचर ऑल्सो एंड दैट इज नियर अबाउट 150 केल्विन ऑल्सो. ओके, अभी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, ठीक है, दैट इज मेटल्स इज कॉल्ड एज एन मेटेलिक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से. तो कंडक्टेंस जो है दैट इज डिपेंड्स ऑन, याद रखना है अगेन फॉर एमसीक्यू, द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, टेम्परेचर. इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, अभी हम बात करें एज द इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, वो एक वायर के कॉर्नर के अंदर एंट्री मार रहा है, ठीक है, एंड गो थ्रू द अदर एंड. एक एंड से निकल के वो कहाँ जा रहा है? दूसरे एंड में पहुंच रहा है. ठीक है, तो वो टाइम पे कंपोजिशन ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज. इसका जो केमिकल कंपोजिशन रहेगा वो कैसा रहेगा? अनचेंज. ओके, the mechanism of conductance through the semiconductor is very much complex. Okay, अभी ऑलरेडी हमें पता है कि we know that even a very pure water has the small amount of the hydrogen and hydroxyl ions, that is the concentration is 10⁻⁻⁷ molar. और ये आपको पता होगा H plus is equal to OH minus is equal to 1 into 10⁻⁷ molar. Okay, very low conductivity, which land it very low conductivity, that is 3.5 into 10⁻⁵ Siemens into meter, Siemens per meter. When electrolytes are dissolved in water, at that time they furnish their own ions in the solution and hence the conductivity also increases. The conductance of electricity by ions present in the solutions are called as electrolytic or the ionic conductance, and the conductivity of electrolytic solutions are depends on the following criteria. Number 1, the nature of the electrolyte which has been added. Then number 2, the size of the ions produced and their solvation. Number 3, the nature of the solvent and its viscosity. Number 4, the concentration of the electrolyte. Number 5, the temperature. ये तो हमें पता है, it increases with the increase in the temperature. ये क्या है कि directly proportional है. ठीक है, passage of the direct current through ionic solution means DC current, DC power supply provide कर रहा. ठीक है, over a prolonged period can lead to the change in its composition. अगर DC पावर सप्लाई आप दे रहे हो तो केमिकल कंपोजिशन जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा. रीजन क्या है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. ओके, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो हम आगे के सेक्शन में यानी कि नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले. ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना रखेंगे. कुछ भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके. ठीक है, टेलीग्राम चैनल इज देयर, देवांग सर केमिस्ट्री कैपिटल में लिखोगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, या फिर यह वीडियो की लिंक जो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, उसके अंदर भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. ठीक है, थैंक यू.